Hi everyone. Okay, so hello everyone. So in the last class we had done subject verb agreement. So I explained you certain concepts. I explained you the rules which are necessary for subject verb agreement. So I hope you have watched my last lecture on subject verb agreement. If not, the link is given in the description, so you can go and watch that class before solving the questions. Before solving the questions, it's very necessary that you go and watch that class, and after watching that class please come back and then you can carry on with the practice questions. Okay, so today we are going to practice questions on subject verb agreement which we had done in the last class. So everyone please try to solve on your own, and then we will be then you can just match your answers if it is correct or not. Okay, so I'll just continue with the questions now. So the first question set that I have taken, it's from your book itself. It's from the ICAI book itself. So we will be solving these questions now, and after that I have brought with me some few more questions, so we will be doing that. So let's continue. Subject verb agreement, I hope you all know the rules, so please keep those rules in your mind and then you solve the questions. Okay, so let's move ahead. So the first question here is, I'm very sorry, I don't do all that greetings and all, I'm very sorry. Let's carry on. Okay, but yes, if you do like my class, do subscribe and do like this video as well. Okay, it will just help me to carry on. Chalo. So the first question here is, music soothe me. Now please tell me, is it correct? Like, as per the subject verb agreement, as we all know, music soothe me is the wrong answer. What should it be? It should be music soothes me. You already know that the subject must agree with the verb. Subject must align with the verb. Your verb must align with the singularity or the plurality of the verb. So यहाँ पे आपका music क्या है? It is a singular thing, right? So our verb will also be singular. So the correct answer here is music soothes me. Clear? Okay, let's move ahead now. The next question here is, John bake brownies every Christmas. Now please tell me, what is the verb here? The verb here is bake, and what is the subject here? The subject here is John. So what should be the correct answer? The correct answer here is, John is a singular subject. It's a singular subject, right? So the verb should also be singular. So let us just make our verb singular. John bakes brownies every Christmas. This is the correct answer. Okay, let's move ahead. Diana and Shruti is arguing again. Diana and Shruti is arguing again. So you know the correct answer here. What is the correct answer? Diana and. When one or more subject is joined by and, you all know when one or more subject is joined by and, then the verb is always plural. So here the verb will be are, right? Diana and Shruti are arguing again. Next. Avantika never takes the bus to work. Okay, so here the verb is takes, and Avantika is the subject. So Avantika is a singular subject, and now takes is also a singular verb. So is it correct or incorrect? This is absolutely correct. So we do not need to change anything in this sentence because the sentence is perfectly correct. Let's move ahead. I hope I'm not going very fast. If I am, please pause it and then you continue with the question. Next question here is, because I have 20 more questions for you, so we need to solve that also. So I'll just go a little bit fast. I hope I'm not that fast. Now, the people who own that house has no insurance. So what will be the answer here? The people who own that house has no insurance. Here the verb is has. The people who own that house. Now we have one rule in which there may be some prepositional phrase, there may be some phrase in between the subject and the verb, right? We did that rule where if there is any phrase in between the verb and the subject, we are supposed to ignore that phrase.
we will only check out the subject and the verb. What are we going to check out? We are only going to check the subject. Now the subject is plural or singular? The subject here is plural, isn't it? The subject here is plural. So my verb will also be plural. So the people should who own that house have no insurance. The correct answer is the people who own that house have no insurance. Clear? Let's move ahead. One of these mechanics have a set of jumper cables. Now, one of these mechanics have a set of jumper cables. Now, this question, I hope you all can do it on yourself. Why? Because here the subject is, what is the subject here? The subject is one of these mechanics. I know most of you must be confused with mechanics and one of. But when I put one, all, I told you like you need to see if there is any prepositional phrase in this. Right? I told you if there is any prepositional phrase like of these mechanics. Can you see of these mechanics? And if there is a subject here in the phrase, so you need to compare. आपको इस subject को compare करना है with the verb. You remember? So हम क्या करेंगे? यहाँ पे one of these mechanics है. भले ही ये आपका plural है, ये आपका प्लूरल है, बट यहाँ पे आपको वन दिखाई दे रहा है. मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द मैकेनिक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली वन ऑफ द मैकेनिक्स. सो मेरा वर्ब क्या होना चाहिए? क्या मेरा वर्ब प्लूरल होना चाहिए या सिंगुलर? माई वर्ब शुड बी सिंगुलर. ओके, सो वन ऑफ दीज मैकेनिक्स हैज होगा. क्या होगा? वन ऑफ दीज मैकेनिक्स हैज अ सेट ऑफ jumper cables. Are you understanding my point? Since यहाँ पे one of these है, I am not talking about the mechanics, total mechanics, all the mechanics. I am talking about one of the mechanics. So यहाँ पे क्या होगा? मेरा verb singular होगा. Next one. Richard and his brother is mending the wings of butterfly. Very simple this is. Richard and his brother is mending the wings of butterfly. I told you two subjects joined by and, always a plural verb. तो यहाँ पे क्या होगा? Richard and his brother. तो यहाँ पे and his brother दो subject है ना? There are two subjects, Richard and his brother. तो यहाँ पे is की जगह क्या होना चाहिए? are होना चाहिए. Clear? Let's move ahead. Both of my essays is brilliant. बहुत ही सिंपल सा है ये. Both of my essays is brilliant. हमने ये किया था शायद से आपके रूल्स में. यहाँ पे both of my essays है और ये आपका प्लूरल है और यहाँ पे both है. तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? यहाँ पे मेरा is नहीं होगा, यहाँ पे मेरा are होगा. Clear? Okay. The pulses emitted by a neutron star recurs at precise intervals. मतलब क्या हो गया? The pulses emitted by a neutron star recurs at precise intervals. है ना? तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है? प्लीज मेरे को बताना सब्जेक्ट क्या है. क्या मेरा सब्जेक्ट न्यूटन स्टार है या मेरा सब्जेक्ट द पल्सेस है? व्हाट इज द सब्जेक्ट? आई एम टॉकिंग अबाउट रेकरिंग. राइट? रेकर का मतलब होता है, इस सेंटेंस का मतलब होता है न्यूटन स्टार से जो भी पल्स है वो अगेन एंड अगेन आता है. रेकर का मतलब कमिंग अगेन एंड अगेन. ठीक है? द पल्स इज एमिटेड बाय द न्यूटन स्टार रेकर्स एट प्रिसाइज इंटरवल्स. यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट जो है, मैं जिस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रही हूँ, एज पर द वर्ब क्या चीज वापस आ रहा है? पल्सेस वापस आ रहा है. तो मैं यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट, एक्चुअल मेन सब्जेक्ट क्या है? पल्सेस है. तो क्या मैं पल्सेस को देखूंगी या फिर न्यूटन स्टार को देखूंगी? ऑफ कोर्स मैं पल्सेस को देखूंगी. मैंने आपको बोला था, मैंने एक रूल लिखवाया था, आइडेंटिफाई द ट्रू सब्जेक्ट. रिमेंबर, एक रूल लिखवाया था कि यू नीड टू आइडेंटिफाई द ट्रू सब्जेक्ट इन दिस. यहाँ पे आपका ट्रू सब्जेक्ट है पल्सेस. राइट? तो पल्सेस मेरा प्लूरल है ना? दिख रहा है? प्लूरल है ना? तो मेरा वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा. तो वर्ब को प्लूरल बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगी? रेकर्स की जगह मैं क्या करूंगी? रेकर करूंगी. राइट? द पल्सेस इंटाइटल्ड बाय अ न्यूटन स्टार रेकर एट प्रिसाइज इंटरवल्स. क्लियर? चलो नेक्स्ट मूव करते हैं. वन ऑफ माई आंट्स डांसेस at the Rainbow Cafe.
वन ऑफ माई आंट डांसेस, सेम है, वन ऑफ द मैकेनिक, सेम चीज़ है ये। तो ये मेरे को बताओ यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर या प्लूरल? सब्जेक्ट मेरा मैम सिंगुलर है, बिकॉज we are talking about one of the aunts, we are not talking about all the aunts, we are talking about one of the aunts। तो मेरा सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है, तो वर्ब भी मेरा सिंगुलर होगा। वेरी गुड। तो सिंगुलर वर्ब है क्या? लेट्स चेक। हाँ मैम, डांसेस, डांसेस हमारा सिंगुलर वर्ब है, तो यहाँ पे दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। दिस सेंटेंस में कोई चेंजेस करना है क्या? नहीं करना है। देयर विल बी नो चेंजेस इन दिस, देयर विल बी नो चेंज इन दिस sentence, okay? Now next one, Mr. Bates and his friends has gone to the concert। very simple, अभी हम लोग ने similar question किया है। Mr. Bates and his friends has gone to the concert। यहाँ पे and लगता है, and whenever two subjects are joined by and हम क्या करते हैं? plural लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा? have होगा। clear? So Mr. Bates and his friends have gone to the concert। Are we clear? Let's move ahead now. Both of my daughters are professional doctors। very easy this one is, both of my daughters are professional doctors। तो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट किसके बारे में बात हो रहा है? both of my daughters, और मेरे दोनों daughters के बारे में बात हो रहा है। both मतलब एक से ज़्यादा सब्जेक्ट है, राइट? तो यहाँ पे मेरा वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। इज द वर्ब प्लूरल? यस, सो इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो दिस सेंटेंस इज ऑल्सो करेक्ट। Let's move ahead. Every one of the workers receive the same benefits। अब ये बताओ, ये every के साथ मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था। I hope you remember। every के साथ मैंने ना आपको एक क्वेश्चन करवाया था every के साथ, कि अगर मेरा every आता है सेंटेंस में तो हम क्या करेंगे? Let me just check where that is। which rule was that? let me just check, I'm very sorry, I'll just check। मैं ये रूल आपको दिखा रही हूँ इसीलिए, ताकि आपको आइडिया रहे कि आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है? ये रहा, ईच एंड एवरी नो कम्स बिफोर द सब्जेक्ट, वर्ब इज सिंगुलर। अगर ये हमारे सब्जेक्ट के पहले आता है तो हमारा वर्ब सिंगुलर होगा। रिमेंबर दिस वन। So each every no comes before the subject, verb is singular। If two subjects connected by and are preceded by each every no, then we use a singular subject। जैसे each boy and girl, तो यहाँ पे each लिखा है, every लिखा है, और उसके बाद भी and है, तो याद है हमने कहा था कि singular verb होगा। रिमेंबर? सो यहाँ पे भी सेम चीज़ है। every one of the workers, ठीक है, यहाँ पे every है, one of the workers है, ठीक है ना? तो every one of the workers receive the same benefit। यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट जो है वो मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मेरा वर्ब भी सिंगुलर होगा। क्या मेरा वर्ब यहाँ पे सिंगुलर है? नो, एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे मैं क्या करूँगी? वर्ब को सिंगुलर करूँगी, दैट इज मैं यहाँ पे क्या करूँगी? रिसीव्स करूँगी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ये सारे रूल्स मैंने लिखाए हैं, ये सारे रूल्स मैंने करवाए हैं। आई होप यू जस्ट गो एंड यू जस्ट रीड द रूल्स प्रॉपरली, बिकॉज इससे क्वेश्चंस आएंगे, बिकॉज दिस इज न्यूली एडेड टू योर सिलेबस। डू नॉट लीव दिस, डू नॉट नेग्लेक्ट दिस, बिकॉज मुझे ये फीलिंग है कि इसमें से क्वेश्चंस अच्छे से देंगे ये लोग, ठीक है? नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। देयर इज 2 rodents इन माई बाथरूम। देयर और हियर का भी मैंने आपको रूल करवाया था। मैंने बताया था कि अगर देयर और हियर है तो इसके बाद जो सब्जेक्ट है उसको हम देखेंगे टू मेक आर वर्ब हियर। वर्ब देयर के बाद पहले वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है। तो मैंने आपको बताया था कि वर्ब के बाद जो सब्जेक्ट है उसको हम पहले चेक करेंगे, अगर वो मेरा प्लूरल है तो वर्ब को भी प्लूरल करेंगे, अगर ये वर्ब मेरा सिंगुलर है तो हम वर्ब को भी सिंगुलर करेंगे। तो यहाँ पे देखो, देयर इज 2 rodents, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है rodents क्या है? प्लूरल है ना? तो क्या यहाँ पे हम वर्ब को चेंज नहीं करेंगे? यस, हम यहाँ पे करेंगे देयर आर 2 rodents इन माई बाथरूम। मेरी बात समझ आई? आई होप दिस इज इट्स क्लियर। There are 2 rodents in my bathroom, यहाँ पे R हो जाएगा। Next one, this box of toys belong in the attic। अब ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन है जो मैंने आपको एक रूल्स में बताया था। मैं रूल में वापस नहीं जा रही, बिकॉज आई नीड टू फाइंड विच रूल वॉज इट, बट सी हियर, दिस बॉक्स ऑफ टॉयज बिलोंग इन द एटिक। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद कभी कभी प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है,
है ना, प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है, हम उसको इग्नोर करते हैं। जैसे हमने वन ऑफ दीज मैकेनिक्स में किया था, मैकेनिक्स हमारा प्लूरल था इस वाले क्वेश्चन में, लेकिन हमने वन को देखा था। सिमिलरली यहाँ पे दिस बॉक्स ऑफ टॉयज, यहाँ पे टॉयज आपको प्लूरल दिखाई दे रहा है, बट हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, हम बात करते हैं दिस बॉक्स के बारे में। हम दीज बॉक्सेस के बारे में बात नहीं कर रहे, हम एक सिंगुलर बॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेरा सब्जेक्ट भी क्या होगा, मेरा सब्जेक्ट भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगुलर होगा। बात समझ में आ गई, वर्ब भी यहाँ पे मेरा सिंगुलर होगा। तो हम क्या करेंगे, दिस बॉक्स ऑफ टॉयज बिलोंग्स इन द एटिक करेंगे। क्या करेंगे, बिलोंग्स इन द एटिक। आई होप दिस इज क्लियर, आपको समझ में आया। वेरी सिंपल दीज क्वेश्चंस वर, इजंट इट, बहुत ही इजी क्वेश्चंस था। तो ये आपके बुक के क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। अब हम मूव करते हैं जो दूसरे क्वेश्चंस जो मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। लेट्स मूव अहेड विद दीज क्वेश्चंस। जल्दी से ये सारे क्वेश्चंस भी हम कर लेते हैं। इसका भी बहुत सिंपल सा है, आप आई होप यू ऑल कैन डू इट ऑन योर ओन। सो लेट्स ट्राई, ओके। सो व्हेन आई रीड अ क्वेश्चन, ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन, pause the video, try to do it on your own and let me know in the comments if you got all right or wrong, ठीक है ना। अगर ये करते वक्त आप लोगों का सब करेक्ट है, then please let me know, I will be very proud that you understood whatever I have taught you. This will make me happy. चलो, now the first question is his pants dash torn during the match, ठीक है ना। तो his pants dash torn during the match, अब इसमें बता दो क्या होगा। आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस ही आएंगे, तो आपके पास ऑप्शंस है, जल्दी से बता दो क्या होना चाहिए यहाँ पे आंसर। हिज पैंट्स वर, राइट, वर होगा आंसर। क्यों होगा वर, कोई बताएगा मुझे क्यों होगा वर। वर इसीलिए होगा बिकॉज पैंट्स, मैंने आपको एक रूल लिखवाया था, सर्टेन वर्ड्स आर देयर विच आर ऑलवेज टेकन एज अ प्लूरल, जैसे कि सिजर्स। ये कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जो हम हमेशा कंसिडर करते हैं एज अ प्लूरल सब्जेक्ट। तो ये पैंट्स आपका कभी भी सिंगुलर हो ही नहीं सकता, यहाँ पे आंसर क्या होगा, वर होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है, एरन टुगेदर विथ हिज वाइफ डैश द गेस्ट्स ऑफ द पार्टी, टुगेदर विथ हिज वाइफ डैश द गेस्ट्स ऑफ द पार्टी। अब ये बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है, एरन टुगेदर विथ हिज वाइफ। ना मैंने आपको एक चीज बताई थी विथ, और एक रूल में आपको लिखवाया था यहाँ पे, लेट मी गो टू दैट रूल ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिले कौन सी रूल की बात कर रही हूँ मैं। ये रूल नंबर 8 दिख रहा है आपको, वर्ड्स लाइक विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ के साथ हम क्या देखते हैं, डू नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ द वर्ब। If the subject is singular, the verb is singular. If the subject is plural, the verb is plural. मतलब basically हम क्या देखेंगे, हम first verb, first subject को देखेंगे। याद है, जैसे कि example मैं आपको यहाँ बताती हूँ, इस वाले क्वेश्चन में बताती हूँ। I hope most of you can solve this. यहाँ लिखा हुआ है Aaron together with his wife, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कौन सा सब्जेक्ट को देखेंगे, हम इस सब्जेक्ट को देखेंगे, न कि दिस सब्जेक्ट, हम इसको नहीं देखेंगे। हम उस वर्ब को देखेंगे जो सबसे दूर है, फारदेस्ट अवे है, ठीक है ना, उस सब्जेक्ट को देखते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे होता एरन टुगेदर विथ हिज चिल्ड्रेन, तो हम चिल्ड्रेन को नहीं देखते, हम फिर भी एरन को ही देखते। जब भी आपका ऐसा सेंटेंसेस हो जहाँ पे दो सब्जेक्ट टुगेदर विथ और ऐसे जुड़े हुए हो, जैसे कि टुगेदर विथ, बिसाइड्स, एज वेल एज, इन एडिशन टू, ऐसे जुड़े होते हैं, तो हम फर्स्ट वर्ब को, फर्स्ट सब्जेक्ट को देखते हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट को। जैसे इस एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था, हम फर्स्ट सब्जेक्ट को ही देखते हैं, जैसे राम आर चीफ कॉम्पिटिटर, है ना, फर्स्ट सब्जेक्ट को हम देखेंगे। तो यहाँ पे भी एरन टुगेदर विथ हिज वाइफ, तो यहाँ पे क्या होगा, वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा बिकॉज एरन इज सिंगुलर, तो यहाँ पे आपका वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। तो क्या करूंगी मैं, ग्रीट्स करूंगी, राइट। तो एरन टुगेदर विथ हिज वाइफ ग्रीट्स द गेस्ट्स एट द पार्टी। क्लियर, चलो लेट्स मूव अहेड नाउ। नेक्स्ट वन, tweezers dash always useful to handle small objects। अब ये वाला मैंने ऊपर ही करवाया आपको। tweezers मैंने क्या बोला था, कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जिसको हम कंसिडर करते हैं एज अ प्लूरल नाउन। सम वर्ड्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज प्लूरल नाउन्स, जैसे कि tweezers। तो tweezers के साथ क्या करेंगे, हम is कभी नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, are। tweezers are always useful to handle small objects। I hope you all are getting it right. Please let me know. Now,
द ज्यूरी डैश नॉट कन्विंस्ड. अब ये बहुत ही सिंपल सा है, ये आपके रूल्स में मैंने आपको करवाए हैं, जल्दी से बता दो. द ज्यूरी डैश नॉट कन्विंस्ड क्या होना चाहिए? ये ज्यूरी क्या है मेरा, इसमें से कौन सा आंसर होना चाहिए? द करेक्ट आंसर इज वॉज. वॉज क्यों है और वर क्यों नहीं है? वॉज क्यों है और वर क्यों नहीं है? बिकॉज ज्यूरी इज अ कलेक्टिव वर्ड. रिमेंबर आई टोल्ड यू, whenever you have a collective noun, then we will treat it as a singular noun, and similarly the verb will also be singular. ठीक है ना, बराबर. आई होप आपको समझ में आ रहा है. The jury was not convinced. I'm sorry. नेक्स्ट करते हैं. To cry dash never a, to cry dash never the solution to all any problems. तो क्या होगा? ये तो बहुत सिंपल सा है. To cry is, ये नॉर्मल है, सब्जेक्ट जो भी लेंगे हम और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब को डाल देंगे, है ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को अलाइन कर देंगे. टू क्राई इज नेवर अ सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम्स. अब ये वाला बताना, ये 6 और 7 को स्टार मार्क कर लीजिए प्लीज, और इसको आप एग्जाम के पहले एक बार देख के जाएंगे बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट. नाउ प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 6. अ नंबर ऑफ सोल्जर्स. आप इसको देखना, प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव डन दिस करेक्टली और नॉट, बिकॉज आई रियली वांट टू नो हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड विद 6 and 7. ओके, इफ यू नो द डिफरेंस व्हाट आई एम अबाउट टू टेल यू ऑल. नाउ अ नंबर ऑफ सोल्जर्स डैश इंजर्ड ड्यूरिंग द वॉर. अब बताओ क्या होगा? अ नंबर ऑफ soldiers dash injured during the war. What will be the correct answer? मैंने आपको बताया था a number of करते हैं तो हम किसको देखेंगे? हम इस सब्जेक्ट को देखेंगे, और सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है तो हम क्या करेंगे? वर्ब भी प्लूरल डालेंगे. अ नंबर ऑफ सोल्जर्स वर इंजर्ड ड्यूरिंग द वॉर. ये समझ में आ गया? आई होप आपको ये तो ईजी था. नेक्स्ट क्या है? द नंबर ऑफ डिसीज्ड सोल्जर्स डैश नॉट स्टोर्ड इन द रिकॉर्ड बुक. नंबर ऑफ डिसीज्ड, द नंबर ऑफ डिसीज, मैं बार बार आपको हिंट दे रही हूं. द नंबर ऑफ डिसीज्ड सोल्जर्स, the number of deceased soldiers dash not stored in the record book. तो क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे आपका आर या वर नहीं होगा, ये और ये नहीं होगा. यहाँ पे आपका आंसर होगा इज. वाई इज? बिकॉज बच्चा यहाँ पे हमने द लगाया है. जब हम द लगाते हैं ना, हम एक पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात करते हैं. तो नंबर ऑफ डिसीज्ड सोल्जर्स के पहले एक ग्रुप बैठ गया है कि ये पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सोल्जर्स जो मर गए हैं उनका नाम अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया गया है. सो वी आर टॉकिंग अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ डिसीज्ड soldiers. Are you getting my point? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कोई भी, a number of soldiers were injured in the war. लेकिन यहाँ पे हम द लगाते हैं तो हम एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सोल्जर्स के बारे में बात करते हैं जो डिसीज हो चुके हैं. इसीलिए मेरा वर्ब जो है वो प्लूरल नहीं आएगा, इट विल ऑलवेज बी सिंगुलर. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज लेट मी नो इफ यू अंडरस्टूड दिस. दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके गाइज, दिस इज इंपॉर्टेंट. नाउ let's move ahead with the next one. This is also easy and I have taught you all. यहाँ पे let me know what will be the answer if you all can make it correct. A pack of lions dash approaching the camp. A pack of lions dash approaching the camp. What will be the answer now? A pack of lions. Now I told you, identify the true subject. I am talking about a pack. I am talking about a pack. I am talking about a collective noun here. Are you getting my point? I am talking about a collective noun here. A pack of lions was approaching the camp. समझ में आया? मैं lions की बातें नहीं कर रही हूँ, मैं lions का pack की बात कर रही हूँ. जैसे कि मैं यहाँ पे मैं कोई भी डिसीज्ड सोल्जर्स के बारे में बात नहीं कर रही थी, मैं द पर्टिकुलर नंबर ऑफ डिसीज सोल्जर्स के बारे में बात कर रही थी, राइट? और यहाँ पे जब मैंने लगाया था, आई वॉज टॉकिंग अबाउट, मतलब a number of soldiers, any number of soldiers, a number of soldiers were injured during the war. तो यहाँ पे मैं दूसरी बात कर रही हूँ, यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर का स्टैंप लगा देती हूँ, तो इसीलिए मेरा इज आ जाता है, बिकॉज आई अननोइंगली मेक इट अ ग्रुप. और यहाँ पे तो ग्रुप लिखा ही है, यहाँ पे आई हैव ऑलरेडी रिटन अ पैक ऑफ लायंस, सो आई हैव मेड लायंस का एक ग्रुप, एक कलेक्टिव नाउन, एंड सो माई सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सो माई वर्ब विल ऑल्सो बी सिंगुलर. Are you getting my point?
let's move ahead now. I have a lot of questions, so let's do a little faster. Killing dash not always considered a bad thing. अब ये बताओ, killing dash is not very simple. This is, yeah, killing dash was not always a considered a bad thing. Killing was not always considered a was होगा, right? अगर is होता तो is हो जाता, लेकिन यहाँ पे is है नहीं तो was करेंगे, ठीक है. Now there dash many difficulties regarding the situation. अब ये बताओ there dash, अब यहाँ पे there है, देर के बाद मैंने क्या बोला था, आपको क्या चेक करना है, आपको सब्जेक्ट चेक करना है. तो सब्जेक्ट में क्या है, सब्जेक्ट में आपका प्लूरल है, राइट, प्लूरल है, तो आपका वर्ब भी प्लूरल होगा. देयर वर मेनी डिफिकल्टीज रिगार्डिंग द सिचुएशन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो नेक्स्ट. हियर डैश द टूम ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन. वेरी सिंपल, यहाँ पे हियर है, मैंने आपको बताया था. हियर के बाद आप क्या देखोगे, आप सब्जेक्ट को देखोगे. सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर है. वेरी गुड. तो सिंगुलर के साथ हम क्या वर्ब लगाएंगे, हम लगाएंगे लाइज. हियर लाइज द टूम ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन. क्लियर? लेट्स मूव अहेड नाउ. क्वेश्चन नंबर 12. ईदर शी और हर फ्रेंड्स डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सीडेंट. अब यहाँ पे बताओ, ईदर और के साथ मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ईदर और के साथ क्या लगता है, ईदर और के साथ, रिमेंबर आई टोल्ड यू इन दिस रूल कि अगर ईदर एंड और होगा, सो व्हाट आर वी सपोज टू डू? वेयर इज दैट रूल? आई जस्ट गेट टू यू. ओके, हाँ, सी नाउ. ईदर एंड और है तो हम क्या देखते हैं, प्लीज ये वाला लाइन दिख रहा है आपको? कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस? We check the subject that is nearest to the verb. What do we check? We check the subject that is nearest to the verb. मतलब क्या हो गया? What do you mean by this? Please check here. Either she, ये एक singular subject है. Now or her friends, ये कौन सा subject है? This is a plural subject. I told you we check the subject that is nearest to the verb. Now nearest to the verb we have plural subject, so my verb will also be plural. So either she or her friends dash responsible for this accident. So यहाँ पे क्या होगा, are responsible for this accident. Clear? Let's move ahead. Now neither me nor my parents. जल्दी से ये बता दो. I am very sure you know this already because I have just discussed this in question number 12. Now neither me nor my parents. This is what? This is a singular subject. Nor my parents. This is a plural subject. So the subject which is nearer to the verb will be considered when you are putting the correct form of verb. What will be the verb now? Verb will be plural as well. So यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? Neither me nor my parents were aware of the incident. Getting my point? Very simple. Okay, and guys, I will be coming up with a class जहाँ पे मैं company law का सारे cases, all the case studies that are there in your syllabus, I will be discussing it with the concept. So make sure you attend that class also because I know your exams are approaching. So I will just make a short video where I will discuss about all the case laws of company law and all the important topics in Companies Act, so that it can be very easy for you all to, because those cases are very important, those case laws are very important. So make sure you watch that video as well. Let's move ahead. Now none of them dash able to solve this question. अब ये बताओ, none of them dash able to solve the question. Very simple है. None of them, कोई भी, उनमें से कोई भी नहीं. यहाँ पे them क्या है, plural है, तो यहाँ पे मेरा verb क्या आ जाएगा, plural आ जाएगा. None of them were able to solve the question. Let's move further now. Now these are the few more questions that I have brought with you, that I have got for you all. Let's go ahead and check this as well. Very simple. You just have to tell me which is the correct form of verb here. Sally dash to the park every day. Which one will it be, run or runs? Sally is singular, so my answer will be singular. Sally runs, ये answer होगा, right? So Sally runs to the park every day. Next one. The dog bark or barks at strangers. Very simple. Dogs क्या है, plural है,
तो मेरा वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा, सो इट विल बी bark at strangers. Next one, I am going a little fast, these are very easy questions. Ted and Mary dash going to the movie. Ted and Mary, अब मैंने क्या बोला, and के साथ है, दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, तो मेरा वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा. So Ted and Mary are going to the movies. Answer is R. The game dash exciting. अब मेरे को बताओ, the game is a singular subject, so game was exciting. My friends dash too much. My friends, ये प्लूरल है, सो माई फ्रेंड्स के साथ क्या आना चाहिए, वर्ब भी मेरा प्लूरल आएगा, सो व्हाट विल बी द वर्ब, द माई फ्रेंड्स वरी टू मच. गॉट इट. नेक्स्ट वन, ओलिविया डैश एवरी नाइट. ओलिविया इज अ singular subject, so my verb will also be singular. Olivia studies every night. This is the correct answer. Let's move ahead now. Black or white dash your choice. अब बताओ black or white. अब मैंने और लगा दिया है, हमेशा और के साथ क्या होगा, इसके पहले वाला देखेंगे, we will not consider both, remember. So ये मेरा क्या है, singular है, so यहाँ पे क्या होगा, black or white is your choice. क्या करेंगे, black or white is your choice. Next one, the movie dash incredible. The movie is a singular subject, so यहाँ पे verb भी singular होगा, the movie was incredible. Next one, archery dash my favorite hobby. Now archery एक singular subject है, is my favorite hobby. Next one, the cats or the dog. The cat or dogs, अब मैंने क्या बोला था, और है, और के साथ कौन सा verb देखते हैं, कौन सा subject देखते हैं, the subject which is nearer to the verb, right? यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, डॉग्स है, विच इज नियरर टू द वर्ब, तो हम क्या लेंगे, हम आर लेंगे. क्या लेंगे, आर. द कैट और डॉग्स आर इन द यार्ड, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नियरेस्ट टू द वर्ब इज प्लूरल, ये आपका प्लूरल है, तो आपका वर्ब भी प्लूरल होगा. क्लियर. लेट्स मूव अहेड नाउ. दीज क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस है, इसको भी देख लेते हैं, देन वी विल बी डन. Now tell me, what you have to do is you have to correct the question here. You have to correct the incorrect sentences. All are incorrect. I have given you only the incorrect sentences. You need to correct it. Now, the pen or the pencil are fine for the test. Now, please tell me, अभी हमने किया है, यहाँ पे और लगा है, सो हम कौन सा सब्जेक्ट देखेंगे, हम ये सेकंड वाला सब्जेक्ट को देखेंगे. सेकंड वाला सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है, राइट? तो मेरा वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए था, इजंट इट? क्या मेरा वर्ब सिंगुलर है? नो मैम, ये मेरा प्लूरल है, तो मैं क्या करूँ, मैं इसको करेक्ट करूँगी. द वर्ब द पेन और द पेंसिल इज फाइन फॉर द टेस्ट. आर यू क्लियर? नेक्स्ट, माई सिस्टर डोंट अंडरस्टैंड. बच्चा, डोंट जो होता है ना, वो मेरा डू नॉट का शॉर्टकट है, और डजंट जो होता है ना, वो मेरा डज नॉट का शॉर्टकट है, राइट? डज आपका सिंगुलर है और डू आपका प्लूरल है. आई होप यू नो दिस, राइट? सो नाउ लेट अस कंटिन्यू विद द क्वेश्चन. माई सिस्टर डोंट अंडरस्टैंड. नाउ प्लीज टेल मी, क्या मेरा यहाँ पे डोंट आना चाहिए था या डजंट आना चाहिए था? डजंट सिंगुलर के साथ है, सिस्टर मेरा सिंगुलर है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, डजंट अंडरस्टैंड. आर यू क्लियर? डज आपका सिंगुलर के साथ डील करता है, इट इज अ सिंगुलर ऑक्सिलरी. डू आपका प्लूरल है. क्लियर? नेक्स्ट, दोज शूज हैज बीन चीपर इन द पास्ट. अब ये बताओ, दोज शूज हैज बीन चीपर इन द पास्ट. अब मैंने आपको बताया था, जैसे कि पैंट्स वाले केसेस में देयर आर सम नाउन्स विच यू कैन नॉट कंसिडर एज अ सिंगुलर. शूज पेयर होते हैं, तो इसको हमको प्लूरल ही लेना पड़ता है. Those shoes have होगा ना, have been cheaper in the past. Clear? Next, you rides with me. अब now please tell me, क्या ये correct है? Of course ये correct नहीं है, बोलने को ही नहीं हो रहा. Now you के बाद you is a singular, right? अब आप बोलोगे मैम you के बाद तो singular है, तो राइड्स होना चाहिए, लेकिन हम राइड क्यों करते हैं बेटा? जैसे हम यू हैव करते हैं. यू एक ऐसा प्रोनाउन है जिसको हम एज अ सिंगुलर नहीं मानते, हम उसको एज अ प्लूरल ट्रीट करते हैं. रिमेंबर, यू को हम सिंगुलर नहीं मानते. जैसे फॉर एग्जाम्पल, डू यू हैव द बुक, हम डू यू हैज़ द बुक कभी नहीं बोलते, हम हैव बोलते हैं. सिमिलरली यू राइड विथ मी बोलेंगे, न कि यू राइड्स. आई नो यू एक सिंगुलर है, यू एक सिंगुलर प्रोनाउन में आता है, बट हम यू को हमेशा प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं. वाई? बिकॉज सपोज देयर इज अ ग्रुप देयर
एंड मैं एक ग्रुप को कर रही हूँ, मैं एक ग्रुप को रेफर कर रही हूँ, तो मैं उस ग्रुप को क्या बोलूँगी, यू नीड टू डू दिस। तो वहां पे यू आपका सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो यू आपका ना एक क्लियर आपको आइडिया नहीं देता है, इसीलिए हमने क्या किया, इसको एज अ प्लूरल ही ट्रीट करना बेहतर समझा। तो यहाँ पे क्या होगा, यू राइड होगा, न कि राइड्स। बात समझ में आ गई, यू राइड होगा, नॉट राइड्स। क्लियर? नेक्स्ट वन, ऑल द गर्ल्स गोज टू स्कूल। नाउ प्लीज टेल मी क्या होगा, ऑल द गर्ल्स, यहाँ पे गर्ल्स है और ऑल द गर्ल्स है, this is a plural subject, so my verb will be plural and goes is not a plural verb, goes is my singular verb। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, go कर देंगे। all the girls go to the school। बात समझ में आ गई, simple। so these were the questions that I came up with। I hope you all had an amazing time, I hope you all understood whatever I have taught now। so please make sure that you revise all the rules that I have given and you practice questions। जो आपकी बुक में है वो भी मैंने करवा दिया एंड ये सारे क्वेश्चंस भी मैं आपके सामने लेके आई हूँ। अगर आप ये कर लेते हो एग्जाम के पहले, लेट मी टेल यू, यू विल स्कोर अमेजिंगली विद दिस पर्टिकुलर topic। okay, so please do not leave this and make sure you do well and do not panic at all। I know you all are studying hard, keep studying and you will shine। thank you so much everyone, it was very nice having you all, see you in the next class, bye bye।